اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 12th، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ آپ جانتے ہیں ہم سرفیس کیمسٹری کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، کیٹلیسس. تو کیٹلیسس میں اب تک ہم نے ہوموجینس اور ہیٹیروجینس کیٹلیسس جو ہے وہ ڈسکس کی کمپلیٹلی. آج ہمارے لیے یہاں پر دو ٹاپکس ہیں، یہ لاسٹ ٹاپک ہیں اس کے. ایک ہے زیولائٹس. زیولائٹس جو ہیں انہیں ہم شیپ سلیکٹیو کیٹلیسس بھی کہتے ہیں. زیولائٹس اور شیپ سلیکٹیو کیٹلیسس. ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے زیولائٹس اور شیپ سلیکٹیو کیٹلیسس. تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جو زیولائٹس ہیں یہ ایکچولی گریک ورڈ سے حاصل ہوا ہے. زیولائٹ جو گریک ورڈ اس کا مطلب ہے بوائلنگ سٹون. ورڈ زیولائٹ مینز بوائلنگ سٹون. اب یہ بوائلنگ سٹون نام اس کو کیوں دیا گیا ہے؟ ایکچولی یہ زیولائٹس جو ہوتے ہیں دے آر پورس سبسٹنسز، پورس سالڈس رادر. تو ان پورز میں واٹر ہوتا ہے. دا واٹر از ٹریپڈ ان دا پورز آف زیولائٹس. اور جب ہم اس پورس سبسٹنس یا پورس سٹون کو، جو سالڈ ہے یہ سٹون کہہ سکتے ہیں، جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ جو واٹر ہوتا ہے ان پورز یہ باہر آ جاتا ہے. اٹ کمز آؤٹ ان دا فارم آف ویپرز. تو اسی لیے ہم ان کو بوائلنگ سٹونز کہتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یعنی زیولائٹ ورڈ کا مطلب ہے بوائلنگ سٹون. تو بوائلنگ سٹون اس کو اس لیے نام دیا جاتا ہے کیونکہ زیولائٹس پورس سبسٹنسز ہیں، ان کے پورز میں واٹر ہوتا ہے، اور ہم جب ان سٹونز کو ہیٹ کرتے ہیں تو ہیٹ کرنے سے یہ پانی جو ہوتا ہے یہ باہر آتا ہے، تو اندر میں پورز رہ جاتی ہیں، ویکنٹ اسپیس رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو زیولائٹس میں پورز رہ جاتے ہیں، ویکنٹ اسپیس رہ جاتی ہے. تو کیمیکلی اگر ہم دیکھیں گے یہ جو زیولائٹس ہیں دے آر المینو سلیکیٹس. کیمیکلی دے آر المینو سلیکیٹس. ان کی جنرل فارمولا ہے MX/N AlO2 whole X SiO2 whole Y and Z times water. یہ ان کی جنرل فارمولا ہے. اس میں جو یہ M ہے، M represents the metal ion. It can be sodium ion, potassium ion, magnesium ion, calcium ion. ان میں سے کوئی بھی ایان بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو N اس میں ہے، X is the number of metal ions. N جو ہے N represents the charge present on the metal ion. میٹل ایان پہ کیا چارج ہے؟ جیسے سوڈیم پہ +1 چارج ہے تو N کا ویلیو 1 آ جائے گا. اگر میگنیشیم ہوگا تو اس پہ چارج +2 ہے تو یہاں پر N کا ویلیو 2 آ جائے گا. تو اسی طرح سے واٹ ایور دا چارج آن دس میٹل ایان
दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस n। और फिर यहाँ पर x जो है, जैसे कि वजह है, ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और y भी नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और z जो है, z रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। और z का वैल्यू जो है, इट वेरीज फ्रॉम वन जियोलाइट टू अनदर जियोलाइट। चूँकि आप समझ गए कि जियोलाइट्स चूँकि बॉइलिंग स्टोन है, जैसे मैंने बता दिया कि ये पोरस स्टोन होती है, इसके पोर्स में वाटर होता है। जब हम इसको हीट करते हैं, ये वाटर बाहर चला आता है, तो पोर्स रह जाते हैं इस स्टोन में। तो इसलिए ये जो जियोलाइट है, इसकी स्ट्रक्चर जो है, ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर है। हनी कॉम आपने देखा होगा, जिस तरह से हनी कॉम में खाली जगहें होती हैं, इसी तरह से इन जियोलाइट्स में भी खाली जगहें होती हैं, यानी सॉलिड होता है, बीच बीच में इसमें पोर्स होते हैं, तो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है। तो ये जो सॉलिड्स हैं, जियोलाइट्स जो हैं, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम कैटालिसिस पढ़ रहे हैं, इसका नाम भी है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस। तो इसलिए जियोलाइट्स जो हैं, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स, दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स। तो ये किस तरह से एज कैटलिस्ट काम करते हैं, यह समझना बिल्कुल आसान है कि जिस वक्त हम इस जियोलाइट को हीट करते हैं, तो हीट करने से इसमें पोर्स रह जाते हैं। अब ये जो पोर्स इसमें हैं, इनका साइज जो होता है, पोर्स का साइज वो वेरी हो जाता है। पोर्स का साइज एक जैसा नहीं है। कुछ जियोलाइट्स में पोर्स छोटे होते हैं, कुछ में बहुत बड़े होते हैं। इनका साइज जो है, दैट जनरली रेंजेस फ्रॉम 260 पिकोमीटर्स टू 740 पिकोमीटर्स। अब आप समझ रहे होंगे, यानी पोर्स का साइज इस रेंज में है। इसलिए जिस वक्त हम जियोलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट, तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं, दे गेट एड्जॉर्ब्ड इनटू दीज पोर्स। ये पोर्स में चले जाते हैं। आप जानते हैं कि स्पेस बढ़ जाए, जिस तरह से आपने पढ़ा है कि जैसे सिलिका जल है या एक्टिवेटेड चारकोल हैं, वो बेस्ट एड्जॉर्बेंट्स हैं, क्योंकि उनकी सरफेस जो होती है वो पोरस होती है। पोरस सरफेस जो होती है वो एड्जॉर्बेंट सरफेस को बढ़ा देती है। इसलिए जियोलाइट्स में भी एड्जॉर्बेंट सरफेस बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द पोर्स। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल गेट एड्जॉर्ब्ड इनटू दिस पोर्स। मगर एक चीज़ तो क्लियर है, अब चूंकि इन पोर्स का साइज जो है, दैट इज अ डेफिनेट साइज, एक खास रेंज है, तो इसलिए वही मॉलिक्यूल इन जियोलाइट्स में एड्जॉर्ब हो जाएंगे जिनका साइज 260 टू 740 के दरमियान होगा। इसलिए ये जो जियोलाइट्स हैं, ये इस्तेमाल होते हैं फॉर एज कैटलिस्ट्स फॉर दोज रिएक्शंस वायर द रिएक्टेंट्स आर of that size which can easily get absorbed into the pores, and the products formed are also of that size which can get released from these pores. Reactants and products, तो दोनों क्या होने चाहिए? They should be of a selective size, एक खास साइज इनका होना चाहिए, उतना साइज जो आसानी के साथ इन पोर्स में एड्जॉर्ब भी हो सकते हैं, और फिर प्रोडक्ट बनने के बाद इन पोर से बाहर भी आ सकते हैं। इसीलिए दरअसल इन जियोलाइट्स को हम मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहते हैं। दीज जियोलाइट्स आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीव्स, यानी सीव का काम देते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एड्जॉर्ब नहीं करते हैं, सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज इस रेंज के दरमियान होगा, तो मॉलिक्यूलर सीव्स इन्हें कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब इनका साइज फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड साइज होने के सबब इनमें एक फिक्स्ड साइज के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ही एड्जॉर्ब होंगे या फिर डिजॉर्ब होंगे। इसीलिए हम इन जियोलाइट्स को शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स भी कहते हैं। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स, मिसाल के तौर पर आप इस तरह भी समझ सकते हैं, शेप सिलेक्टिव
कैटलिस्ट्स हम इन्हें कहते हैं, या शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स इन्हें कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया इन पोर्स का साइज़ जो है जियोलाइट्स में वो एक ख़ास रेंज के दरमियान है। मिसाल तौर पर हमारे पास एक कैटलिस्ट है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, आप समझ रहे हैं, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट यानी जिसमें मेटल सोडियम होगा और फिर फार्मूला इसी तरह से आएगी, वो आप समझ सकते हैं। जहाँ पर जिस सिलिकेट में जिस जियोलाइट में मेटल एटम की जगह सोडियम आयन है तो उसको हम नाम देंगे सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। ये जो सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट है इट इज़ यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स एंड नॉट फॉर ब्रांचेड चेन, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रांचेड चेन हाइड्रोकार्बन जो होंगे उनका साइज बड़ा है, दे कांट accommodate themselves in the pores found in the zeolites, while as straight chain hydrocarbons easily get absorbed in the pores। तो इसीलिए चूंकि ये एक खास किस्म के शेप के मॉलिक्यूल्स को कैटालाइज करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल को कैटालाइज नहीं, हर एक शेप के मॉलिक्यूल को कैटालाइज नहीं करते हैं, इसलिए हम इन जियोलाइट्स को नाम देते हैं शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट्स, तो इसलिए ये जियोलाइट जो है ये किन रिएक्शंस को या किन रिएक्टेंट्स को कैटालाइज करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पोर्स इन द जियोलाइट एंड अपॉन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यूज्ड। ठीक है ना। तो जियोलाइट्स में से एक अहम जियोलाइट है, उसका नाम है ZSM5। उस जियोलाइट का नाम है ZSM5। इसका मतलब हुआ जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5, ZSM5 एक जियोलाइट का नाम है। इसकी फुल फॉर्म है जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। जैसे मैंने ऊपर आपको कह दिया कि जियोलाइट्स एक्ट एज मॉलिक्यूलर सीव्स, यानी आधे मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हो उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इस तरह से सीव का काम देते हैं, जिस तरह से सीव छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर पास होने देते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को ऊपर रोक लेते हैं, इसी तरह से जियोलाइट्स भी बड़े मॉलिक्यूल्स को रोक लेते हैं, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को अपने पोर्स के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये ZSM5 जो हैं ये भी मॉलिक्यूलर सीव्स एक्ट करते हैं। तो इनका ये जो हमने यहाँ पर लिखा पोरोसिटी 5, दैट मीन्स दीज आर द मॉलिक्यूल विच हैव स्पेशल रेंज, दे कैन एब्जॉर्ब इन देम only स्पेशल साइज्ड पार्टिकल्स, not all particles in them। और ये जो ZSM5 हैं these are used as catalysts in petrochemicals। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में जब हम रिफाइनिंग करते हैं या इस पेट्रोकेमिकल जो हैं इनकी हम दो अहम प्रोसेसेस कैरी करते हैं, एक को हम कहते हैं क्रैकिंग और दूसरे को हम कहते हैं आइसोमेराइजेशन। ये दो अहम रिएक्शंस हैं, अहम प्रोसेसेस हैं जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हो रहे हैं। क्रैकिंग में हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम ब्रेक करते हैं। वी कैरी ऑन द फिशन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स, उसी फिशन को हम क्रैकिंग नाम देते हैं, ब्रेक करते हैं इन्हें। इस ब्रेकिंग को हम कहते हैं कैटालिटिक, इसको हम कहते हैं क्रैकिंग। तो ये क्रैकिंग जो है ये दो तरह की है, इंशाल्लाह जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे वहाँ हम इनके बारे में पढ़ेंगे। क्रैकिंग दो तरह की है, एक को हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, और दूसरे को हम कैटालिटिक क्रैकिंग कहते हैं। थर्मल क्रैकिंग का मतलब हुआ जब हम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करेंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, सिंपली बाय हीटिंग, वो थर्मल क्रैकिंग कहेंगे। और जाहिर सी बात है कैटालिटिक क्रैकिंग मीन्स जब लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को हम छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक करेंगे तो वहां पर प्रोसेस हम कैरी करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो जनरली यही जियोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं।
तो उस वक्त जब हम कैटलिस्ट की मदद से किसी बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, उसको हम कैटेलिटिक क्रैकिंग कहते हैं। तो उस कैटेलिटिक क्रैकिंग में इन ही जियोलाइट्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल जो हैं इन्हीं में ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इन्हीं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करने के लिए जियोलाइट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगी क्रैकिंग रिएक्शन। तो क्रैकिंग में जियोलाइट्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन जो हाइड्रोकार्बन्स में या पेट्रोकेमिकल्स में कैरी की जाती है, उसको हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। क्योंकि आप पहले से वाकिफ़ हैं विद आइसोमर्स, आपको मालूम है, जैसे आपने 10th में पढ़ा है और 11th में भी आपने पढ़ा है, आइसोमर्स, नॉर्मल पेंटेन एंड आइसोपेंटेन दे आर आइसोमर्स। इसी तरह से नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन दे आर आइसोमर्स। इस तरह से बहुत सारे आइसोमर्स हमारे पास हैं और आपने इन डिटेल पढ़ा है 11th क्लास में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बहुत सारी किस्में हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, टाटोमर्स, और इसी तरह से फिर स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो आइसोमेराइजेशन जो है ये वो रिएक्शन है जिसमें हम एक कंपाउंड को अपने दूसरे आइसोमर में, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में तब्दील करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम आइसोमेराइजेशन कहते हैं। तो इस आइसोमेराइजेशन में भी कैटलिस्ट्स का इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भी यही जियोलाइट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह से हम और भी बहुत सारे कैटलिस्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक तो ये हुआ कि हम पेट्रोलियम जो है फ्रॉम पेट्रोलियम वेल्स हासिल करते हैं। उसके अलावा हम सिंथेटिक पेट्रोल भी बनाते हैं। तो सिंथेटिक पेट्रोल जो है वो हम अल्कोहल से तैयार करते हैं। अल्कोहल्स जो हैं इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू हाइड्रोकार्बन्स, या आप कह सकते हैं इनटू गैसोलीन। गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, पेट्रोल का दूसरा नाम गैसोलीन है। बल्कि हम ये कह सकते हैं जो पेट्रोल हायर क्वालिटी का होता है उसी को हम अक्सर गैसोलीन नाम देते हैं। तो अल्कोहल्स को गैसोलीन में तब्दील करने के लिए भी इस कैटलिस्ट जिसका नाम मैंने ऊपर लिखा ZSM5, जियोलाइट सी ऑफ मॉलिक्यूलर पोरेसिटी 5, हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल्स को गैसोलीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरह से आप जियोलाइट्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। यानी जियोलाइट्स जो हैं ये सॉलिड कैटलिस्ट्स हैं, ये पोरस कैटलिस्ट्स हैं, ये इन नेचर भी एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम सिंथेसाइज भी करते हैं। ये एक्चुअली मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर बता दिया एल्यूमिनोसिलिकेट्स ये होते हैं। तो ये एल्यूमिनोसिलिकेट्स एक्ट करते हैं एज कैटलिस्ट्स, क्योंकि पोर्स होते हैं, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती है, उनके पोर्स में वाटर होता है, वो वाटर हम रिमूव करते हैं बाय हीटिंग, इसलिए इसका नाम दिया गया है जियोलाइट यानी बॉइलिंग स्टोन। फिर जो पोर्स वाटर बाहर आके जो पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो वैकेंट स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, उससे एड्जॉर्बिंग सरफेस ऑफ जियोलाइट इंक्रीज हो जाती है। तो फिर ये मुख्तलिफ मालिक्यूल्स को अपने अंदर एड्जॉर्ब करते हैं, जो उनका एड्जॉर्ब होना डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ द पोर एंड ऑल्सो ऑन द शेप ऑफ द मालिक्यूल, क्योंकि शेप ऑफ द मालिक्यूल जो होगा वो साइज डिटरमाइन करेगा मालिक्यूल का। तो जाहिर सी बात है वही मालिक्यूल जो इन पोर्स में समा सकते हैं उन्हीं की कैटालिसिस इन जियोलाइट्स की मदद से हो रही है। इसीलिए हम इन्हें मॉलिक्यूलर सीव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हर एक साइज के मॉलिक्यूल को अपने अंदर नहीं समाते हैं। और नंबर 2, क्योंकि एक पर्टिकुलर शेप के मॉलिक्यूल्स की कैटालिसिस करते हैं, इसीलिए हम इन्हें शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस कहते हैं। तो शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस में जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक डिफरेंट या एक डेफिनेट शेप के मॉलिक्यूल ही पोर्स में एड्जॉर्ब होकर चेंज होते हैं इनटू प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स का साइज भी जो है वो भी जियोलाइट के पोर्स के रेंज में आना चाहिए, ताकि वो फिर आसानी के साथ इन पोर्स में से बाहर आ सकें। तो ये जो जियोलाइट्स हैं इनके मुख्तलिफ टाइप्स हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल आयन। तो चूँकि डिफरेंट मेटल आयन्स होते हैं उसी हिसाब से हम इनको नाम दे सकते हैं। तो इसमें से मैंने बता दिया एक इम्पॉर्टेंट जियोलाइट है ZSM5, जो हम पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। खासकर सिंथेटिक पेट्रोल अगर हमें फ्राम अल्कोहल्स बनाना हो तो उसके लिए भी हम इन जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जियोलाइट्स जो है एक अहम यूज़ इनका ये है, दे आर यूज्ड फॉर
softening of water. They are used for softening of water, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में तब्दील करने के लिए हम इन जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं. सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट जियोलाइट्स. तो इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज एंजाइम्स. एंजाइम्स जो हैं इनके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में, फ्रॉम द बिगनिंग, 9th क्लास 10th क्लास, बल्कि उससे पहले वाले छोटे छोटे क्लास में भी आप एंजाइम्स के बारे में पढ़ चुके हैं. तो ये जो एंजाइम्स होते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स. दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स, या आप ये कह सकते हैं, these are the compounds which are used to catalyze the biochemical reactions. Catalysts which are used to catalyze. अब आप जानते हैं catalyze का मतलब क्या होता है, to increase or to change the rate of the reaction, generally to increase the rate of the reaction. तो catalysts क्या हैं, catalysts which are used to catalyze the biological reactions. आप जानते हैं biological reactions are those reactions which take place in the bodies of living organisms. Reactions taking place in the bodies of living organisms, चाहे प्लांट हों या एनिमल हों. एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं. इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए जो सब्सटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उन्हीं का नाम एंजाइम्स है, उन्हीं को हम एंजाइम्स कहते हैं. और ये जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं chemically enzymes are they are globular proteins. यानी पहले आप ये समझिए कि एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं. तो फिर प्रोटीन्स जो हैं इनकी अपनी टाइप्स हैं. एक टाइप है प्रोटीन का जिन्हें हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं, एक और है जिसको हम फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं, एक और है जिसको हम बीटा सिलीटेड प्रोटीन कहते हैं. तो प्रोटीन्स की अपनी टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप. तो उसी शेप के सिलसिले में एक प्रोटीन है जिसे हम ग्लोब्यूलर प्रोटीन कहते हैं. तो प्रोटीन जो होते हैं एक्चुअली दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. पॉलीमर्स ऑफ, यानी अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन बनता है बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो अमाइनो एसिड्स पहले कंबाइन करके पेप्टाइड बनाते हैं, तो फिर वही पेप्टाइड जो होता है वो पॉलीपेप्टाइड बनाता है. तो उसी पॉलीपेप्टाइड का दूसरा नाम हम बाद में प्रोटीन देते हैं. और ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई मॉलिक्यूलर मास. आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 15,000 से लेकर 10 लेक्स ग्राम पर मॉलिक्यूल. यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है इसका मॉलिक्यूलर मास है 15,000 to 10 लाख ग्राम पर मोल. और जब यही ग्लोब्यूलर प्रोटीन डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, ये चूँकि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो जाहिर सी बात है ये कैटलिस्ट्स जो होंगे, एंजाइम्स जो होंगे, ये लिविंग बॉडीज़ के अंदर ही होंगे. तो लिविंग बॉडीज़ में ये एंजाइम्स तब काम करते हैं जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वाटर में डिज़ोल्व होके ये कोलाइड्स बनाते हैं. दे फॉर्म कोलाइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशंस इन वाटर, और फिर एक्ट करते हैं एज ए प्रोटीन. तो एक पॉइंट ये है कि एंजाइम्स हम किन्हें कहते हैं. सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए
enzymes are the catalysts which are used to catalyze the biochemical reactions taking place in the bodies of living organisms. Chemically, they are globular proteins with their molecular masses ranging from 15,000 to 10 lakh gram per mole. تو یہ enzymes جو ہیں they form colloidal solutions in water and then act as catalysts. تو جہاں تک ان enzymes کی تعداد کا تعلق ہے as per their number is concerned, enzymes جو ہیں ہر ایک biological reaction کے لیے ایک الگ enzyme ہے. There is a separate enzyme. یہ پوائنٹ نوٹ کر کے رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. There is a separate enzyme for every biological reaction. اس کا مطلب ہوا کہ جتنی biological reactions باڈی کے اندر ہو رہی ہیں, living organisms میں ہو رہی ہیں, جتنی reactions ہو رہی ہیں اتنی ہی enzymes ہیں. تو دیکھا گیا ہے in a single cell almost 3,000 reactions take place. 3,000 different reactions take place in a single cell. That means جب 3,000 reactions ہو رہی ہیں ایک سیل میں, that means there must be 3,000 enzymes in that very cell. کیونکہ ہر ریئیکشن کے لیے اپنا اپنا الگ انزائم ہے. ہر ریئیکشن کے لیے اپنا الگ الگ انزائم ہے. ایک انزائم صرف ایک ہی ریئیکشن میں استعمال ہوتا ہے. یہ دوسری ریئیکشن میں ایک انزائم ایک سے زیادہ ریئیکشنز میں استعمال نہیں ہوتا. اس لیے جتنی ریئیکشنز لیونگ آرگنزم کی باڈی میں ہو رہی ہیں اتنی ہی وہاں پر انزائمز ہوں گے. سو دا نمبر آف انزائمز از ویری لارج. ٹھیک ہے نا. تو ایک پوائنٹ یہ جو آپ کو نوٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہمیں نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انزائمز جو ہیں یا آگے بھی بات پڑھیں گے تو یہیں پہ میں بتا دوں, انزائمز جو ہے ان کی ایفیشنسی جو ہوتی ہے دیٹ از ٹو ہائی, ویری ہائی. یہ ریٹ آف دا ریئیکشن انکریز کرتے ہیں ملینز آف ٹائمز. اس طرح آپ سمجھیے, یعنی اس طرح میں بتا 10 raised power 20 times they increase the rate of the reaction. اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ ان کی ایفیشنسی کتنی زیادہ ہے. اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹی جو ہے, ان کی ایفیشنسی جو ہے, اس کا اندازہ آپ اگر کرنا چاہیں گے تو آپ اس چیز سے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک ٹائم کا جو میل لیتے ہیں, 1 ٹائم میل, ایک بار جو ہم غذا کھاتے ہیں, اگر یہ غذا ہماری باڈی میں ڈائجسٹ ہوگا at the body temperature without an enzyme, ان سب کچھ وہی ہوگا جو ہوتا ہے, صرف ایک انزائم ہم ریموو کریں گے. انزائم کے بغیر اگر ہم 1 ٹائم میل کو ڈائجسٹ کرنا چاہیں گے باڈی میں تو آپ حیران ہوں گے سن کے, it will take 50 years to digest. 50 سال لگ جائیں گے ایک وقت کا کھانا ہضم کرنے میں, اگر یہ ڈائجیشن کی پروسیس, ہضم ہونے کی پروسیس اگر انزائم کے بغیر ہوگی. تو اب خود دیکھ لیجئے, جب انزائم کا استعمال ہوتا ہے تو پھر ہم ایک ہی دن میں ایسے 3 میلز ڈائجسٹ کر لیتے ہیں, بلکہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی کھا لیتے ہیں. تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہوگا, جنرلی ہم کہتے ہیں کہ جب ہم ایک میل لیتے ہیں تو 3 گھنٹوں کے اندر یہ سارا غذا ہضم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ود آؤٹ انزائم جو ریئیکشن 50 سال میں کمپلیٹ ہو رہی ہے, وہی ریئیکشن انزائم کی موجودگی میں صرف 3 گھنٹوں میں کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو اس چیز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انزائمز جو ہیں یہ کتنے اہم ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی جو ہے یا ان کی ایفیشنسی جو ہے یہ کتنی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو دس واز some information about enzymes. So let me give you some examples now.
examples of enzymes और enzyme catalyzed reactions, यानी को बहुत सारी रिएक्शंस जैसे हमने बता दी कि कोई भी रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है, चाहे डाइजेशन की हो, चाहे रेस्पिरेशन की रिएक्शंस हो, या चाहे कोई और रिएक्शन डिकम्पोजिशन एक्सक्रीशन वगैरह, जो कुछ भी हमारी बॉडी में हो रहा है, कोई भी रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के लिए एक एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। तो हम यहाँ पर कुछ सिंपल सी एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस, एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो इसमें एक रिएक्शन है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर। कैन शुगर जो है इसकी फार्मूला है C12H22O11, जिसको आप सक्रोज भी कहते हैं, यानी जो हम चीनी शुगर जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम कैन शुगर से हासिल करते हैं, इस कैन शुगर में सक्रोज होता है जिसकी फार्मूला है C12H22O11। तो इस कैन शुगर की हाइड्रोलिसिस हो रही है, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन को जब ये रिएक्शन होती है, सक्रोज जो है इट ब्रेक्स डाउन इनटू C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक को हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को हम कहते हैं फ्रक्टोज। क्योंकि आप देख रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, C6H12O6। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हैं ये आइसोमर्स हैं, और ये प्रोसेस जो है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज इनवर्टेज। द एंजाइम इज कॉल्ड एज इनवर्टेज, और ये जो इनवर्टेज एंजाइम है इसका सोर्स जो है दैट इज यीस्ट से इनवर्टेज एंजाइम हासिल किया जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इट इज कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम इनवर्टेज। इसी तरह से दूसरी रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। तो ग्लूकोज जो है दैट इज C6H12O6। ये जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू इथाइल अल्कोहल हमें जरूरत पड़ता है एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज जाइमेस। तो जाइमेस इसको इथाइल अल्कोहल C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज जो कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन जो है इट टेक्स प्लेस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपने पढ़ा है बायोलॉजी में एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। आप जानते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस दौरान जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेन प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल होता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेस। आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन में इन्वर्टेज का इस्तेमाल हुआ, नीचे वाली रिएक्शन में जाइमेस का इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से एक और एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ maltose into glucose, conversion of maltose into glucose। देखिए maltose की फार्मूला है C12H22O11। ये बिल्कुल इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सक्रोज के साथ रिजेंबल करती है, दोनों की फार्मूला एक जैसी है, बट दीज आर टू डिफरेंट शुगर्स। उसका पता आपको इस तरह से चलता है जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो इसकी हाइड्रोलिसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड एज माल्टेज। एंजाइम का नाम है माल्टेज, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज
2 molecules of glucose, C6 H12O6, दोनों ग्लूकोज मालिक्यूल बन जाते हैं। अब आप समझ गए ना सक्रोज और माल्टोज में क्या फ़र्क है। हालांकि दोनों में एक जैसी मालिक्यूलर फार्मूला है, मगर जब दोनों की हाइड्रोलिसिस हो जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। सक्रोज में जो प्रोडक्ट बनते हैं दैट इज ग्लूकोज एंड स्टार्च, जबकि माल्टोज की हाइड्रोलिसिस में सिर्फ ग्लूकोज बनता है। और फिर आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली रिएक्शन जो है सक्रोज की हाइड्रोलिसिस दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज, और जो माल्टोज है इसकी हाइड्रोलिसिस जो है दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ माल्टोज। माल्टोज इनवर्टेज की जगह इस्तेमाल नहीं होगा, और इसी तरह से इनवर्टेज जो है वो माल्टेज की जगह नहीं ले सकता है। इसी तरह से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। मिसाल के तौर पर एक और रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल हुआ C2H5OH। C2H5OH जब हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, when we carry the oxidation of ethyl alcohol, the product formed is CH3COOH, जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, और वाटर बनता है इसके अलावा, एसिटिक एसिड एंड वाटर। इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड एज माइकोडर्मा एसिटाई। माइकोडर्मा एसिटाई, माइकोडर्मा एसिटाई एंजाइम है that is used to convert ethyl alcohol into acetic acid। ये जो माइकोडर्मा एसिटाई होता है ये मौजूद होता है इन ओल्ड वाइनगर। वाइनगर एक्चुअली एसिटिक एसिड ही होता है, इसी वाइनगर में ये एंजाइम पाया जाता है माइकोडर्मा एसिटाई, तो इसके लिए अलग एंजाइम है। इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हम डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा डाइजेशन के दौरान एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन जो है इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। इसी तरह से एक और एंजाइम है, उसका नाम है ट्रिप्सन। उसका नाम है ट्रिप्सन। ट्रिप्सन जो है इट इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। अब आप देख लीजिए, पहला वाला एंजाइम जो है पेप्सिन, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स, और दूसरा जो है ट्रिप्सन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं दीज आर द मोनोमर यूनिट्स फॉर प्रोटीन्स। इसी तरह से एक और आप देख लीजिए, हम मिल्क को कर्ड में तब्दील करते हैं। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड। इसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है दैट इज लैक्टिक बेसिलाई। लैक्टिक बेसिलाई, लैक्टिक बेसिलाई जो ये कर्ड में पहले से मौजूद होता है। तो इस तरह से मिल्क को कर्ड में तब्दील करने के लिए, टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, इसके लिए ये एंजाइम इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह से बहुत सारी जितनी भी रिएक्शंस बायोलॉजिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में, जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, हर बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए अपना अलग अलग एंजाइम होता है। इसलिए जितनी रिएक्शंस होती हैं उतने ही एंजाइम्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, लिविंग वर्ल्ड में मौजूद हैं। जैसे मैंने बता दिया, एंजाइम्स जो है इनकी स्पेसिफिसिटी जो है, एक तो ये स्पेसिफिक इन नेचर है, यानी एक एंजाइम किसी दूसरे रिएक्शन, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करता है। अब ये एक एंजाइम एक से ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इनकी एक्टिविटी है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत हद तक इनक्रीज करते हैं। एफिशिएंसी इनकी बहुत ज़्यादा है, 10 रेज्ड पावर 20 टाइम्स ये रेट ऑफ द रिएक्शन को इनक्रीज कर सकते हैं। तो ये एंजाइम्स जो हैं इनके क्या कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें से एक दो कैरेक्टर्स मैंने आपको जैसे बता ही दिया। तो सुबह कल इंशाल्लाह फिर कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम इनकी
کریکٹرسٹکس جو ہیں، کیونکہ اس کے بہت سارے کریکٹرسٹکس ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے، اور اس کے علاوہ یہ انزائمز کیسے ایکٹ کرتے ہیں، یعنی انزائم کی جو ایکٹیویٹی ہے ایز کیٹلسٹس، جو تھیوری ہے میکنزم آف انزائمیٹک کیٹلسس جو ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ کل ڈسکس کریں گے، اور پھر اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو یونٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو مجھے امید ہے کہ جو آج کا لیسن تھا یہ آپ نے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اس میں ہم نے 2 پوائنٹس ڈسکس کیے، ایک میں نے آپ کو زیولائٹس کے بارے میں بتا دیا، دوسرا انزائمز کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ انزائمز کیا ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایگزام میں ان زیولائٹس کے بارے میں شارٹ نوٹ بھی آ جاتا ہے، تو انزائمز کے بارے میں بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایگزامپلز آ جاتے ہیں انزائمز کی۔ تو جو بھی ہو، چونکہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوگا، تو کل ہم انشاءاللہ اس کے لاسٹ ٹاپک تو یہی ہے، تو اس کا کل لاسٹ لیسن ہوگا اس یونٹ کا، اس کے بعد ہم نیا یونٹ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو ویری مچ۔